morning friends. Friends, today we are going to start a new chapter, that is third one chapter from the standard 12 part 1 book of statistics. The third chapter is linear regression. My dear friends, this chapter is totally depends, that is this concept is totally depends on one assumption, that there is a correlation between the variables. I repeat again, this chapter is totally depends on one assumption, and that is there is a correlation between two variables. ये assumption के ऊपर ही पूरा chapter depends है. And the regression word is used by Sir Francis Galton. The term regression is used very first time by Sir Francis Galton. That is one MCQ for you. My dear friend, we are not able to estimate one variable with the known value of the other variable. But if we want to know what is the impact of the other variable, so it is possible in the chapter regression. My dear friend, it is possible in correlation also, but there is a condition. One condition is that if there is a perfect correlation, whether negative or positive doesn't mean that, but if there is a perfect correlation between the variables, then we are only able to judge or estimate the other variables. Okay, but in practical life it is not possible every time that to get the perfect positive correlation between the variables. So now we have to study our regression. My dear friends, all we know that correlation between x and y is presented as rxy, and rxy is equals to ryx because of अब x और y का correlation find करेगा, y और x का find करेगा, answer remain same, and that is the reason we are not mentioning every time x, y or yx, we are using just only r. But my dear friends, in the regression chapter, in this concept, the method of scatter diagram, if all the points are falling on a straight line, it is called perfect positive correlation between the variables. But many of the points are not falling on the straight line, but they are near or around the straight line. So this gap we have to be studied. And this line gives x on y. The regression line is given x on y, and many points are available here, like in this way. So we have to find out one more line, that is called y on x. Okay, so what is the meaning of y on x and what is the meaning of x on y? Later on we discuss on it. But this is the concept. In these circumstances, we have to minimize our error part, because of we have to estimate the values of the other variable. Okay, so rxy, ryx and r, there it is known as a correlation coefficient, my dear friends. bxy is called regression coefficient of x on y, and byx is called regression coefficient of y on x. And remember, my dear friend, both are not equal, so we cannot mention only b. But in your syllabus this time we have to discuss about only byx, so we are able to represent byx as b. Because of this one concept is not in your syllabus, in the old syllabus it is available, so we discuss bxy in old syllabus. But sometimes if I get proper times, I would like to share some things about this one regression coefficient also. So byx is equals to b. My dear friends, some properties are there. The first property what we have learned in the chapter correlation coefficient, that is correlation coefficient is independent about change of origin and scale. But regression coefficient is independent about change of origin but not of scale. My dear friends, आप इस चैप्टर में आप माइनस करो, प्लस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं होती थी, मतलब आंसर चेंज नहीं होता था. लेकिन अगर आप b फाइंड कर रहे हो तो आप सिर्फ प्लस और माइनस ही कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ ओरिजिन. आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अप्लाई नहीं कर सकते हो. बट माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते ही हो मुझे, हम एक a भी करेंगे, लेकिन हम आंसर्स को बाद में रेक्टिफाई भी कर लेंगे. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे देखोगे आप किस तरह से इंपैक्ट को हम लोग रिमूव कर सकते हैं. सो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे आज कि इसकी थियरी कैसे है. माय डियर फ्रेंड्स, द फॉर्मूला टू फाइंड आउट byx is equals to r into sy upon sx. This is the formula.
तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि विदाउट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, without correlation coefficient we are not able to get the regression coefficient, जो मैंने आपको बिगिनिंग में बताया इस चैप्टर के बिगिनिंग में कि this chapter is depends on the one assumption that there is a correlation between the variable, मतलब जितना भी हम लोग यहाँ पे रिजल्ट्स ऑब्टेन करने वाले हैं, इंटरप्रेट करने वाले हैं, एस्टिमेशन फाइंड करने वाले, सारे के सारे एस्टिमेशन, सारे के सारे फ्यूचर प्रेडिक्शंस ये किसके ऊपर डिपेंड है कि दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन है। मान लो कि अगर आपका एज्यूम्पशन रॉन्ग निकला, आपका एज्यूम्पशन रॉन्ग निकला तो आपके सारे जो जजमेंट है, आपके सारे प्रिकॉशंस हैं, आपके सारे प्रेडिक्शंस हैं, आपके सारे फोरकास्टिंग है, ये क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। क्लियर? तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन होना बहुत जरूरी है। आप देखते हैं बेटा यहाँ पे आपका वेरी फर्स्ट फॉर्मूला क्या था कोरिलेशन का? ये था कि कोवेरिएंस ऑफ xy डिवाइड बाय sx into sy, ये आपका फॉर्मूला। देखो इसको रिप्लेस किया तो लिख दिया कोवेरिएंस ऑफ xy डिवाइड बाय sx into sy into दिस रिमेन सेम, तो sy upon sx। अब देखो आप sy और sy कैंसिल हो गया तो बचता क्या है? कोवेरिएंस ऑफ xy डिवाइड बाय sx into sx दैट इज कॉल्ड sx स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया b by x। माय डियर फ्रेंड्स, the sign of b by x is depends only on covariance of xy। अगर covariance of xy नेगेटिव है तो आपका आंसर भी नेगेटिव रहेगा। बिकॉज़ अब ये क्या हो गया? वेरी आंसर मैग्नेस नेवर बीन अ नेगेटिव अमाउंट, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये नेगेटिव हो सकता है। तो अगर ये नेगेटिव है तो आपका आंसर भी नेगेटिव रहेगा, और ये पॉजिटिव है तो आपका आंसर भी पॉजिटिव ही रहेगा। बराबर? अब देखते हैं दोस्तों, bxy into b by x, the product of two regression coefficient is equal to the square of correlation coefficient। दोनों का मल्टीप्लिकेशन correlation coefficient का स्क्वायर बन जाता है। इसका मतलब देखते हैं, तो bxy का फॉर्मूला लिखते हैं, तो ये मैंने लिखा r और ये हुआ sx upon sy into इसका लिखता हूं फॉर्मूला, तो क्या हो गया r और ये sy upon sx is equal to what? तो पहले r स्क्वायर, देखो sy कैंसिल, sx कैंसिल, तो क्या बच गया? r into r that is r square। बराबर? that means what? the product of two regression coefficient। remember my dear friends, स्कूल में या कहीं पे भी कोई भी कोचिंग क्लास में, ठीक है बेटा, ये मेरा रिस्क है कि मैं यूट्यूब पे सब कुछ शो कर रहा हूं, लेकिन किसी भी स्कूल में, किसी भी ट्यूशन क्लास में ये सारे पॉइंट डिस्कस नहीं करते हैं। मालूम होगा तो डिस्कस करेंगे ना। ये क्या है? the product of two regression coefficient is the square of कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अच्छा, मुझे मान लो कि मेरे पास ये क्लियर है कि r स्क्वायर इज इक्वल टू b by x into bxy। बराबर? मुझे r फाइंड करना है, क्या होगा? सिंपल के रूट, तो b by x into bxy। माय डियर फ्रेंड्स, आप एक प्रॉपर्टी और सीख गए हो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अभी आपको याद था, ये तो आपने किया ही है कि if is equal to root of il into ip। ये सीम्स सेम, आप देख सकते हो सेम है। कि फिशर्स का इंडेक्स नंबर क्या है? इट इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पासेस इंडेक्स नंबर। बाय द सेम वे आवर कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। बराबर? अब एक और चीज नोट करनी ऐसी है कि by x और ये r, इन तीनों तीन के साइन हमेशा सेम रहते हैं। अगर एक पॉजिटिव है तो बाकी सारे पॉजिटिव, अगर एक नेगेटिव तो सारे के सारे नेगेटिव। दैट मींस व्हाट? द साइन ऑफ bxy, byx एंड r हैव सेम। बराबर है? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। इफ इट हैपेंस, यस, देयर इज अ जुलाई। बराबर? ओके फाइन। तो ये प्रॉपर्टीज चल रही है हमारी। एक बात और, आपने ये देखा कि bxy into byx is equal to r square होता है। अच्छा, r का अमाउंट क्या है? वी हैव अ रेंज, r की रेंज क्या है? -1 to +1 ये आपकी रेंज है, आपको बताएगा। और आंसर इज लाई बिटवीन -1 to +1। कीप पे अटेंशन मोर इन दिस पॉइंट। बराबर? देखो तो क्या होगा, अगर मैं r स्क्वायर करता तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो बोले 1, इसका स्क्वायर भी क्या होगा? बोले 1। इसका मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट अमाउंट क्या हो गई? 1 इसकी r स्क्वायर की, और लोएस्ट क्या है? 0। It means what? Our r square is lie between 0 to 1। ये क्लियर हो गया? बराबर? अब समझते हैं
इसका मतलब है कि हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर या तो 0 आएगा या मैक्स टू मैक्स 1 आएगा, बराबर, क्लियर। अच्छा, अगर by(x) मोर देन 1 है, if anyone, please, if anyone regression coefficient is more than 1, other must be less than 1. I repeat the concept. If anyone का मतलब मैंने यहाँ by(x) लिखा है, ये bxy भी हो सकता है। If anyone regression coefficient is more than 1, other must be less than 1. मतलब अगर मान लो कि मेरा by(x) का आंसर 1.08 आया है, तो मेरा bxy क्या होगा, लेस देन 1 ही आएगा वो, बराबर। वो 1 भी पॉसिबल नहीं है। अगर 1 भी आए, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.08 होगा, दैट मींस व्हाट आंसर इज नॉट लाइंग इन दिस रेंज। क्लियर, ये साइकिल जो चल रही है पूरी वो समझते हैं इसलिए, बराबर ना। इफ एनीवन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज मोर देन 1, अदर मस्ट बी लेस देन 1। ये हो गया। दूसरा समझते हैं, बराबर। अभी आपने ये देख लिया कि bxy into by(x), ये क्या हो गया, ये r²। नाउ द नेक्स्ट वन, if there is a perfect correlation, if there is a perfect correlation between two variables, परफेक्ट कोरिलेशन मतलब क्या हुआ, r की वैल्यू 1 -1 हो सकती है या प्लस, चलो मैं लिखता हूं प्लस और -1 लिख दिया, इसका स्क्वायर हो गया bxy into by(x). so what happens, so 1 is equal to bxy into by(x). ये हो गया, समझना, ये पॉइंट बहुत मजा वाला है। if there is a perfect, एक कौन सी कंडीशन में, देखो if बोल रहा हूं मैं, बिगिनिंग में if बोल रहा हूं, मतलब ये टर्म्स हमेशा के लिए नहीं है, ये पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए। if there is a perfect correlation between the variables, regression coefficients are reciprocal of each other। regression coefficients are reciprocal of, मान लो तो by(x) फाइंड करना है तो क्या हो गया, 1/bxy हो गया, और मान लो आपको bxy फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, 1/by(x). कौन सी कंडीशन में, अगर दो वेरिएबल के बीच में परफेक्ट कोरिलेशन है। परफेक्ट मतलब क्या, या तो -1 है मतलब परफेक्ट नेगेटिव है, या +1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव। इन दिस कंडीशन both the regression coefficients are reciprocal of each other। and the most important part जो मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि आप प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। दैट मींस व्हाट, regression coefficient is independent about change of origin but not of scale। so these are the basics of this chapter। my dear friends, मैं एक वीडियो आपके लिए अलग से बनाने वाला हूं, इसमें थोड़ी बेसिक थ्योरी मैं आपको पर्सनली शेयर करूंगा, बराबर, या उसकी लिंक भेज दूंगा, या फिर देखते हैं मेरे माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है कि जो भी टैलेंट है मेरे पास वो इस तरह से पब्लिकली आ रहा है। लिंक आप कई लोगों को शेयर कर सकते हो, थियरी अप्रोच सभी लोगों को ट्यूशन टीचर भी देख सकता है, एंड दे गॉट द नॉलेज विदाउट पेइंग एनी सिंगल पेनी। माय डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रिस्क ले रहा हूं, बराबर। ज्यादा लोगों को लिंक शेयर ना करें, आप लोग एंजॉय करें। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहां पे रिग्रेशन लाइन ऐसे है कि y इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा x प्लस u। ये आपका ओरिजिनली रिग्रेशन मॉडल है। रिग्रेशन मॉडल मींस व्हाट, इट इज अ इक्वेशन। मॉडल का मतलब वो नहीं जिसको आप टीवी पे देखते हो। यहाँ पे मैथमेटिक्स में कोई भी इक्वेशन बनता है उसको भी आप मॉडल बोल सकते हो। हमारे पास रिग्रेशन मॉडल है, बट इट इज अबाउट पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन के लिए है, बराबर। लेकिन हमारे पास डेटा किसका होगा, यस माय डियर फ्रेंड्स, डेटा सिर्फ और सिर्फ सैंपल का ही होगा। तो हम इसका क्या करेंगे, सी हम लोग एस्टिमेट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे y कैप। दिस सिंबल इज कॉल्ड कैप, और कैप का मतलब रहेगा इट इज नॉट अ रियल वैल्यू, इट इज जस्ट एन एस्टिमेटेड वैल्यू। वो एस्टिमेटेड वैल्यू है। जैसा मान लो कि अभी आपने 12th के बोर्ड का एग्जाम नहीं दिया है, लेकिन आप जज करते हो या गेस करते हो कि सर इस बार मेरे 95% आएंगे, तो 95% इज नॉट रियल वैल्यू, वो आपकी कौन सी वैल्यू है, एस्टिमेटेड वैल्यू है, बराबर। और मान लो कि आपके परसेंटेज 96 आए, तो 96 इज अ रियल वैल्यू एंड 95 इज योर एस्टिमेटेड वैल्यू। तो 95 को आप कैसे, 95 के लिए आप y कैप लिखोगे, y कैप 95 और y इज इक्वल टू 96। तो ये आपकी रियल वैल्यू है और ये आपकी एस्टिमेशन है, और दोनों का डिफरेंस इज कॉल्ड एरर। अगर मुझे एरर फाइंड करना है तो y माइनस y कैप होगा। अगर मुझे एरर फाइंड करना है तो क्या होगा, e फॉर एरर, या फिर आप उसको u भी लिख सकते हो, बराबर ना। तो e is equals to y minus y कैप हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, 96
-95 मतलब एरर कितना है 1, मतलब आपका एस्टिमेशन परफेक्ट राइट था। इसका मतलब क्या, ये गैप बहुत कम है तो एस्टिमेशन आपका राइट है, क्लियर, मतलब एरर पार्ट आपका मिनिमम है। लेकिन मान लो कि आपने एस्टिमेट किया 95 और आपके आते हैं 45, बराबर, तो यहाँ पे ये 45 मैं लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा -50, तो ये ह्यूज गैप है। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर मतलब रिग्रेशन के अंदर ऐसा किया गया कि ये एरर पार्ट को मिनिमाइज करने की ट्राई की गई। अगर ये मिनिमाइज मतलब मिनिमम मतलब क्या, 0 तक लेके जाओ ताकि आपका एस्टिमेशन इतना परफेक्ट हो कि दोनों सेम होने चाहिए, बराबर। और इस मेथड का नाम है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जहां पे आपका एरर मिनिमाइज होता है मतलब ऑलमोस्ट 0 होता है। तो हमारी जो स्टडी है तो हम अल्फा के बदले स्मॉल a यूज करेंगे बिकॉज़ हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, और बीटा के बदले हमारे पास b रहेगा और वेरिएबल हमारा x है, और इसको हमने एरर पार्ट है इसको हमने ऑलमोस्ट 0 कर दिया है तो इसका यूज यहाँ पे नहीं आएगा। रिमेंबर ये आपका ओरिजिनल रिग्रेशन मॉडल है और ये आपका बेस्ट फिटेड लाइन है, बेस्ट फिटेड लाइन, बराबर है। ये याद रखना पड़ेगा, ये एमसीक्यू में है, ये वीडियो आप बार-बार भी देख सकते हो थियरी को मजबूत करने के लिए। अब ये जो आपके पास b है, क्योंकि ये जो मेरा रिग्रेशन लाइन है ये y on x है, ये y on x है, तो ये जो आपका b है दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x, इसको आप by(x) लिख सकते हो। एंड रिसेंटली आई हैव प्रूवन, मैंने सबसे पहले b का फार्मूला क्या लिखा कि r into sx upon sy, सॉरी sy upon sx था यहाँ पे, sy upon sx, b का फॉर्मूला जिसको आप by(x) बोल सकते हैं। रिमेंबर ये लास्ट वेरिएबल x है तो x की इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी, x ऑलवेज बीइंग इन द डिनोमिनेटर। कुछ फार्मूलाज हैं जो डिस्कस मैंने कल आपके साथ में ऑनलाइन किए थे लेकिन वापस कर देता हूँ। यहाँ पे आपका वेरी फर्स्ट फार्मूला है कि r is equal to sum of x minus x bar y minus y bar divided by first root of sum of x minus x bar square other root of sum of y minus y bar square। अब इसके ऊपर से अगर मुझे by(x) मतलब b का फार्मूला बनाना है तो मुझे पता है रिसेंटली क्या प्रूव किया था कि सर b is equal to what, तो सर कोवेरिएंस ऑफ xy डिवाइड बाय sx स्क्वायर, ये मेरा फार्मूला प्रूव हुआ था, बराबर ना, थोड़ी देर पहले। तो अभी मेरा by(x) b क्या हो गया, तो सर न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, तो यहाँ पे सम ऑफ x minus x bar y minus y bar डिवाइड बाय x की इंफॉर्मेशन डिनोमिनेटर y का तो कहीं यूज ही नहीं है, मतलब इसका तो यूज ही नहीं करना है, और देखो स्क्वायर किया मतलब ये स्क्वायर रूट पे नहीं लेना है, तो मेरे पास क्या रहेगा यहाँ पे सम ऑफ x minus x bar स्क्वायर। इस तरह से हम जितने भी फार्मूला सीखे थे कहाँ पे, कोरिलेशन में, वो सारे यूज कर सकते हैं बिकॉज़ ऑफ न्यूमरेटर रिमेन सेम। मतलब न्यूमरेटर में क्या यूज होता है, यस माय डियर फ्रेंड, न्यूमरेटर में हम लोग यूज करते हैं कोवेरिएंस ऑफ xy, और डिवाइड बाय आएगा यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x ओनली बिकॉज़ ऑफ y on x, मतलब हम x पे फोकस कर रहे हैं, मतलब y पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ओनली वन लाइन वी हैव इन द सिलेबस। अच्छा ये हो गया, तो आपका जो लाइन है तो y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx, और b के डिफरेंट फार्मूला रहेंगे ऐसे अलग-अलग कंडीशंस में, बराबर। और a का फार्मूला रहेगा कि a इज इक्वल टू y बार माइनस bx बार, बराबर। ये हमारा फार्मूला रहेगा a, हाउ टू फाइंड आउट a इज इक्वल टू y बार माइनस bx बार, बराबर है। मतलब सबसे पहले अगर आपको a फाइंड करना है तो यू नीड b बिकॉज़ b का वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है, बराबर। सबसे पहले लोग b फाइंड करेंगे उसके बाद में a फाइंड करेंगे। दिस इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, बराबर। यहाँ पे भी सिर्फ दो मेथड है, मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम जो ग्राफ ड्रॉ करने हैं, जब हम लोग पर्सनली मिलेंगे तब ग्राफ 15 to 20 मिनट्स लगते हैं समझाने में ग्राफ को, बराबर। सेकंड है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, बराबर। ये हम लोग कल से करेंगे, मतलब कल मैं मेरी फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करूंगा आपके साथ में। तब तक ये वीडियो बराबर देख लीजिए, श्रीकांत सर ने कितनी प्रॉपर्टीज शेयर की हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।